Welcome class 12th. So in this video we will continue with the chapter poverty, and let me just, since we are going to do critical evaluation of poverty alleviation programs today, so I would like to have a recap of what all we have done under that. We had already studied the extent of poverty, which was too huge and large, and thereby government had approached through various dimensions to attack poverty as a challenge. So we were talking about the three-dimensional attack on poverty that government had undertaken. The first approach that we discussed under that was growth-oriented approach. Now under growth-oriented approach, you had already seen what was the main focus, that if we are able to increase GDP and per capita income, then gradually the benefits of that growth will reach to the पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वेल. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यानी हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ग्रोथ के बेनिफिट जो हैं वो सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद हमने वी टॉक्ड अबाउट सेकंड अप्रोच, वेयर इन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इफ वी रियली वांट टू अटैक पॉवर्टी, एलिविएट पॉवर्टी, देन वी हैव टू कम अप विथ स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स. अंडर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स का मेन फोकस क्या था? टू इनेबल पीपल थ्रू सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वो इनकम क्रिएटिंग एसेट्स अफोर्ड कर सकें, या वो इस लायक बन सकें कि दे कैन come up with some small business or some sort of employment generating opportunities for themselves, so that they can have income earned and they can fulfill their basic requirements. ठीक है, उनको इस लायक बनाना कि अपना वो कोई काम शुरू कर सके और उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे. इसके लिए इसके अंदर हमने प्रोग्राम्स जो किए थे स्टूडेंट्स, they were IRDP, that is Integrated Rural Development Program, Prime Minister रोजगार योजना, Rural Employment Generation Program, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, Prime Minister's Employment Generation Program, National Rural and Urban Livelihoods Mission. This is all we have discussed under self-employment programs. Thereafter, we also discussed under the same approach वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. देखिए इसमें क्या फोकस था? टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कई प्रोग्राम्स थे जिसमें आपने देखा वेजेस वर पार्टली पेड इन कैश एंड पार्टली इन काइंड इन द फॉर्म ऑफ फूड. लेकिन इसी तरह से तो मेन फोकस था कि भाई उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, नौकरी दी जाए, काम दिया जाए, चाहे अनस्किल्ड हैं स्किल्ड हैं. डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट फोकस रहा है, डैट यू हैव ऑलरेडी सीन. तो ताकि दे विल बी एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसके अंडर हमने कौन से प्रोग्राम्स किए? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, National Food for Work Program, and last but not the least, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Then we spoke about the third approach that mainly focuses on provision of basic minimum amenities. So under the third approach, if we see, children, India was among the pioneers in the world to envisage, to feel that through public expenditure on social consumption needs, yani provision of food grains at subsidized rates, providing basic access to basic health facilities, education facilities, water supply, sanitation. अगर लोगों को इनकी ये social consumption needs fulfill की जाएंगी, वो भी public expenditure पे, यानी government will be spending money on that, then only we will be able to raise the standard of their living. क्योंकि सिर्फ अगर ये ensure करने से that if we provide them employment, if we give them some income, that is not going to ensure कि उनको सभी जो basic amenities हैं यानी basic सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी. तो बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? इस प्रोग्राम से ये एक्सपेक्टेशन थी टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर. ठीक है, उनका सप्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप फूड ग्रेन्स तो उनको सब्सिडाइज रेट्स पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ही, बाकी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, देखिए वो तो हर
पॉवर्टी एलिविएशन अप्रोच का प्रोग्राम का भी मेन फोकस रहा ही है कि उनको इनेबल करना सो दैट दे कैन by way of self-employment or by wage employment, they are able to get some work and they are able to earn their livelihood. Third, to bring about improvement in the health and education. That was very, very important. तो ये बड़ी holistic सी approach थी जो minimum needs approach थी, program था. Now, इसके अंदर जो major programs हैं, the major programs are public distribution system, integrated child development services, midday meal scheme, national social assistance program. So if we talk about public distribution program, तो हमने इसमें we can see that the main aim was to provide essential consumer goods at cheap and subsidized prices to the consumers. And then there is another program which is integrated child development services. So the main focus here was to provide food and preschool education, primary health care, immunization, health checkup and referral services to children under 6 years of age and their mothers. And basically this integrated child development services, it was launched in accordance to the National Policy for Children in India. So over the years, it has grown into the largest integrated family and community welfare schemes in the world. Next program when we talk about was midday meal scheme. It was also launched in 1995 and it was a national level program for nutritional support to primary education. And it was aiming at improving the nutritional status of school children. ठीक है, जो school going children है इसीलिए उनको nutritious meal provide किया जाता था. That was covered under that. Then a very important program is National Social Assistance Program. देखिए इससे इस program का एक holistic और comprehensiveness पता चलती है, holistic nature पता चलता है, क्योंकि बाकी programs में हमने जो aged persons हैं, senior citizens हैं, widows हैं, disabled हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा specific program नहीं पड़ा है अभी तक. लेकिन ये जो प्रोविजन ऑफ बेसिक मिनिमम इम्यूनिटीज अप्रोच है, इसके अंडर ये जो सोशल असिस्टेंस का प्रोग्राम है, दैट ऑल्सो वॉज लॉन्च्ड, जिसमें सोशल सिक्योरिटी वॉज प्रोवाइडिंग टू दीज पीपल who were dependent, and who were not independent and who were not even able to meet their basic requirements and they needed some extended support. So that was covered under this. So now comes the main topic, and that is the critical evaluation. After going through all the policies, all the measures, all the programs that have been undertaken by the government. जब भी एक चीज़ और आप नोटिस करिए बेटा, ये 6 मार्क का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, तो उसमें आपको अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ती है. ठीक है, अगर कोई भी आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं किसी भी स्कीम को या किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी अप्रोच को, तो सबसे पहले लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट what were the achievements of these poverty alleviation programs. देखिए पॉवर्टी रेट्स आपने ये पढ़ा था नेशनल लेवल और स्टेट वाइज, दे हैव कम डाउन. 1973, 74 और 2011-12 का डेटा आपने कंपेयर भी किया था, स्टडी भी किया था, एंड यू आर एबल टू सी दैट देर इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप. तो पॉवर्टी रेशो जो है वो 1973-74 में इट वॉज अराउंड 54.9% एंड देन इट केम डाउन टू 21.9% इन द ईयर 2011-12. That's a significant reduction, no doubt about that, but comparatively, अगर आप comparison में देखो तो है. Another thing, under the Manrega and another programs, the wage rates have also increased over time. So that is the good thing about these programs. Now let us talk about the failures. Despite variety of programs, covering many aspects, it still raises a big question mark on these because they have not tasted the success they were actually meant to be. So what were the failures? First of all, if you see children, almost 27 crore people, that means more than 1/5 of the population in 2011-12 was still living below poverty line. You see widespread hunger which is there in the country, starvation, undernutrition, children are also malnourished. People are not able to fulfill even 2 square meals requirement, of food. So that, says a sorry state of affairs here. So what has gone wrong? What has led to the failure of these programs? Let's have a look.
देखिए सबसे पहला द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज द मेन रूट कॉज विच वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। ये जो रिच पुअर डिवाइड था, हैव्स एंड हैव नॉट्स, इनमें ये जो मेन रूट कॉज था इसको एड्रेस नहीं किया गया इन प्रोग्राम्स में। और ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये तो बहुत लंबे टाइम से चली जा रही है, इवन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ऑल्सो। इफ यू कैन रिकॉल, लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड immediately after we had adopted planning commission was formed। तो जो ये लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, उसमें एक बहुत अच्छा लैंड रिफॉर्म था लैंड सीलिंग, लेकिन आपने देखा था कैसे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, इन ट्रू स्पिरिट। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये वाइडन ही होती गई। तो पॉवर्टी प्रोग्राम्स ने उस इनइक्वालिटी को दूर करने में दे हैव फेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू सी कंसिडरेबल ओवरलैपिंग ऑफ प्रोग्राम्स। देखिए आपने कितने सारे अभी प्रोग्राम्स पढ़े, एंड यू हैड ऑल्सो सीन हाउ 2 प्रोग्राम्स वर मर्ज एंड देन दैट वाज आल्सो मर्ज विद अनदर वन एंड देन रीनेम्ड। तो बेसिकली नाम तो बदलता गया, नोमेनक्लेचर में चेंज होता गया, लेकिन वो प्रोग्राम में मेन जो फोकस था वो नहीं बदला। तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग होती गई एक प्रोग्राम की दूसरे पर, और कितने सारे प्रोग्राम्स वी एंडेड अप हैविंग, लेकिन वो ट्रू स्पिरिट में दे कुड नॉट अटेन दैट सक्सेस। नेक्स्ट, ये देखिए जितने भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वो चाहे बेसिक मिनिमम एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हो, सबके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो फंड्स एलोकेटेड थे दे वर इनसफिशिएंट, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, सफिशिएंट नहीं थे। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज विच लेड टू देयर फेलियर्स ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट, इफ वी सी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा उन प्रोग्राम्स की? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगे, बैंक ऑफिशियल्स करेंगे, ठीक है ना भाई, गवर्नमेंट के तो प्रोग्राम्स थे वो। तो अब दे लैक्ड मोटिवेशन एंड मैनी वर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट सही स्पिरिट में किया जाए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ, या अगर आप अपने लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और बहुत अच्छा प्लान आपने बनाया, सिस्टमैटिक बनाया, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे है, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो दैट प्रोग्राम विल होल्ड नो मीनिंग एंड इट विल नॉट अटेन एनी सक्सेस। सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। प्रोग्राम्स तो बहुत अच्छे हैं, टारगेट भी बहुत अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत अच्छे रखे गए, फंडिंग्स भी दी गई, लेकिन उनको सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो मैनी ऑफिशियल्स ऑल्सो दे लैक्ड मोटिवेशन, वो इतने मोटिवेटेड नहीं थे और ट्रेंड भी नहीं थे कि कैसे इनको वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंट किया जाए ट्रू स्पिरिट में। नेक्स्ट थिंग, डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन, करप्शन। मनी इन्वॉल्व है, यहाँ करप्शन इन्वॉल्व है, रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, करप्शन इन्वॉल्व है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। तो ये करप्शन की वजह से भी क्या हुआ, दैट दीज प्रोग्राम्स, अब देखिए मेन जो बेनिफिट्स हैं जिनको पहुंचने चाहिए थे ट्रू स्पिरिट में, डिड नॉट रीच द टारगेट ग्रुप। और उसमें क्या था, देखिए क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था बेनिफिशरीज को। बेनिफिशरीज कौन होते हैं? जिनको वो बेनिफिट मिलना है। जैसे इस केस में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर किसी प्रोग्राम में, या पुअर और दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई नॉन पुअर जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिला, ठीक है। तो जो टारगेट ग्रुप है उसको बेनिफिट्स मेनली नहीं मिल पाए कई केसेस में। नेक्स्ट, इफ यू सी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन। देखिए प्रोग्राम चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, चाहे शेयरिंग बेसिस पे है, बट द फैक्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे वो प्रोग्राम तो बना, लेकिन टारगेट ग्रुप कहाँ है? लोकल लेवल पे। उस टारगेट ग्रुप तक वो बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए वी नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन। और लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन पंचायती राज, ग्राम पंचायत होती है ना गाँव में। लेकिन हमने देखा देयर वाज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। उनके लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से लोकल लेवल पे इतने इफेक्टिवली वो प्रोग्राम्स जो थे वो लॉन्च नहीं हो पाए या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। नेक्स्ट, इफ यू सी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर वाज लैकिंग। देखिए बेनिफिशियरी कौन होना था? टारगेट ग्रुप कौन था? पुअर। लेकिन उन्हीं का एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व अगर नहीं होगा तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट गवर्नमेंट हैज कम अप विद PAPs, दैट इज पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। अब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स इज जस्ट लाइक दैट कि आप सपोज किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि भाई फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, मटीरियल अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन और उनको आप सिर्फ
वेबसाइट विजिट करके आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट अवेयर दैट सच थिंग एग्जिस्ट, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, तो उन प्रोग्राम्स के, उन नोट्स के होते हुए भी आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो. भाई ये प्रोग्राम्स तो थे, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर वॉज लैकिंग. नेक्स्ट, दोज इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स, जो भाई इंचार्ज थे उस प्रोग्राम के, जिस भी लेवल पे आप बात करें, लोकल या स्टेट लेवल पे भी, तो दे फेवर्ड एजुकेटेड, रिच, रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट पुअर. Last we see is the poverty alleviation programs have done very little for the disabled, sick and physically handicapped people. देखिए वो तो normal activities करके भी अपना निर्वाह नहीं कर सकते. They can't earn, they can't make a living. They can't be independent also. लेकिन if you see, सिर्फ ये जो basic minimum amenities में मैंने आपको National Social Assistance Program की बात की है, which has exclusively dealt with them. Otherwise उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे programs का orientation नहीं रहा है. So children, this brings us to the end of the chapter, and there is a homework for you. I'm giving you 2 questions to attempt. First, very important question, and it will help you build your perspective as well. Poverty is a multi-dimensional challenge. ठीक है, अब इसको 6 मार्क्स के लिए आपने अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू गिव योर कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो आपको हर एस्पेक्ट से सोच के कि ये मल्टी डायमेंशनल क्यों है, यूनी डायमेंशनल यानी इसका एक ही पक्ष क्यों नहीं है, दैट यू हैव टू सी. Second question that I've given you is, make a list of all the self-employment and wage employment programs which you have done so far and which were merged with other programs and renamed. सिर्फ वो programs का list आपने बनानी है जिनको merge किया गया दूसरे programs के साथ या rename किया गया. Only that much you have to do. Thank you so much.